Good morning, everyone. So, today's lecture is all about your history, which is very familiar story about Harappan Sanskriti, which is to be known as the story of what was happened during the time of before 2000 year ago. What kind of lifestyle Harappian people were followed, and that's how we people today see that what was there in Harappa Sanskriti or Harappiya culture. So here we have a two boy named Jaspal and Harpreet, both playing cricket, and outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old buildings that the children call the haunted house. Look at the architecture, said one of men. वहाँ पे एक आदमी एक बिल्डिंग की तारीफ में जुटा हुआ था, तो हमें ये लगा कि ये इसकी तारीफ़ क्यों कर रहा है जसपाल और हरप्रीत को, क्योंकि वो लोग उसे क्या कहते थे, एक भूतिया घर। लेट्स लुक एट द आर्किटेक्चर। उसने कहा कि इसकी बनावट देखो, क्योंकि हमारा टॉपिक भी वही है कि पिछली हड़प्पा हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो दो संस्कृति जो बहुत मेजर पार्ट है सिंधु खीन संस्कृति का। इंडस कल्चर, देर आर टू मेजर पार्ट्स, हड़प्पा कल्चर एंड द कल्चर ऑफ what is that I just have told you, Mohenjo-daro. Okay, so let's talk about Harappa Sanskriti. So guys, I'll explain you, but very briefly. So Harappa, I have already prepared the notes because of that. So Harappa was one of the oldest cities in the subcontinent which archaeologists found 80 years ago. So 80 years ago in 1950 to 60, during the time of 1940 to 60, between that Harappa was founded. Harappa was founded by archaeologists. So all other cities were buildings similar to Harappa were described as Harappan. So जितनी भी सिटी की हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जिसके हिसाब से जो आर्किटेक्चर हमने ढूंढा है अभी तक, वो सब किस पे बेस है, हड़प्पा संस्कृति की बिल्डिंग्स पे। जिस तरह की बिल्डिंग्स उस टाइम में हुआ करती थी उस तरह की बिल्डिंग पे। सो what was special about these cities? So the city divided into two major parts. Okay, Citadel, the part to the west which was smaller but higher, was called the Citadel. So दो पार्ट में डिवाइड होती थी। एक तो साइटेडल होता था जो वेस्ट पार्ट में होता था, जो छोटा होता था, लेकिन छोटा होता था इसलिए उसे साइटेडल कहा जाता था। और एक लोअर टाउन होता था which is the part to the east was larger but lower was called the lower town. ये टाउन को छोटा भाग कहा जाता था सिटी का ही। The walls of the baked brick were built around each part. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong. In some cities, special buildings were constructed on the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists call the Great Bath was built in this area. Some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouses. सो यहाँ पे हमें ये भी मिलता है कि ये सारी संस्कृति के पास कुछ ऐसी बनावटें थीं जो कि हमें ये आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो कि हमें ये दर्शाती है कि सिटीज़ लाइक मोहेंजोदारो, हड़प्पा एंड द लोथल, उनके पास स्टोर हाउस भी थे जिसमें वो लोग सामान रखते थे।
ग्रेट बाथ नाम का एक टब था, जो एक टैंक था, उसे उन्होंने ग्रेट बाथ नाम के नाम से जाना गया। सो आप देख सकते हो, यू कैन सी इन मैनी हाउ दैट दोस पीपल इन हड़प्पा संस्कृति एंड मोहनजोदड़ो संस्कृति brought brought up from Indus River, and tank were found. There are many cities, in many cities many another things were found. These are the houses, drains and streets which today look like such that we cannot understand them very well, but archaeologists have that tendency that they could understand that, but not in a proper way, because nobody in this world is alive today which can say that what things were there is thing is now. We are same, it's major part of that particular way. So किस तरह के हाउस, ड्रेनेज और स्ट्रीट थी? मोस्ट ऑफ द हाउस हैज़ अ सेपरेटेड बाथिंग एरियाज एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। तो सभी हाउसेस अलग अलग थे, वहाँ पे कुछ नालियाँ बनी हुई थी जिस पे से पानी बहता था। मैनी सिटीज़ हैड अ कवर्ड ड्रेन्स, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लॉप। सो सभी ड्रेनेज लाइन भी थी और एक स्लॉप भी था वहाँ पे, जो ये ड्रेनेज लाइन के पास था। ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लॉप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। तो वो स्लॉप था, उसके कारण क्या होता था, पानी अपने आप बह जाता था। Drains in the houses were connected to streets and smaller drains, which ultimately led into bigger ones. All three houses, drains, and streets were planned and built at the same time. So, ये हम ये कह सकते हैं कि सभी छोटी छोटी जो नालियाँ गटरें थी वो एक बड़ी गटर से मिलती थी। तो गटर व्यवस्था की जो बात आती है तब हमें ये याद रखना चाहिए कि हड़प्पा संस्कृति इसमें मेजर पार्ट और प्ले रोल करती है, जिसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये संस्कृति में हमें गटर योजना मिलती है जो आज हम यूज़ करते हैं। सो वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी थी? हड़प्पा सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस। हम ये कह सकते हैं कि बहुत बिजी प्लेस था। कैसे रूलर्स थे, कैसे स्क्रैप्स थे? रूलर्स वर द पीपल हु प्लान्ड the construction of special buildings in the city. Rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted. So जो रूलर्स थे, जो बड़े बड़े रूल करते थे, वो पब्लिक जो वहाँ की जनता थी उन्हें क्या कहते थे कि आप दूसरे दूसरे जगहों पे जाइए और मेटल और प्रीसियस स्टोन जो हैं उन्हें लेके आइए, क्योंकि वो रूलर्स जो थे वहाँ के उन्होंने उनको प्राप्त करना चाहते थे। स्क्रिब्स वर द पीपल हु न्यू हाउ टू राइट एंड हेल्प इन द प्रिपेयरिंग द सील्स एंड परहैप्स राइट ऑन अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव। तो ये जो स्क्रिब्स थे, इन्हें ये पता होता था कि किस पे क्या, इन्हें क्या लिखना है, और उसी हिसाब से वो सब कुछ तैयारियाँ करते थे, वो मटेरियल की तैयारियाँ करते थे। देयर वर मैन एंड वीमेन क्राफ्ट पर्सन हु यूज़ टू मेक ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। वहाँ पे एक ऐसे लोग भी थे, एक ऐसी जाति भी थी जो कि इस तरह की स्क्रिप्ट तैयार करती थी, इस तरह के मटेरियल तैयार करती थी जिस पे वो लिखावट हो सके। मैनी टेराकोटा टॉयज़ हैव बीन फाउंड इन हड़प्पा सिटीज़ विच शोज़ दैट चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज। तो बहुत सारे खिलौने भी हमें वहाँ से मिलते हैं जिस क्या दर्शाते हैं कि वहाँ पे जो लोगों के बच्चे थे वो वहाँ पे उस स्टोन और सबसे खेलते होंगे, वो डॉल होगी जो भी होगी। सो सिटी में कौन सा नया क्राफ्ट है? सो स्टूडेंट्स, अब बात आती है हस्तकला की। क्राफ्ट इन द सिटी। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पा सिटीज़ वर ऑफ स्टोन्स। सभी प्रकार की वस्तुएं स्टोन से बनी होती थी। शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड एंड सिल्वर, सब तरह के धातुओं की भी बनावट वहाँ पे पाई जाती है। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेजल्स। सो जो भी कॉपर था, ब्रॉन्ज था, वो किसके लिए पाया जाता था और किसकी बनावट में उपयोग होता था? बर्तनों की बनावट में
और जो भी ऑर्नामेंट हम सब पहनते थे, वो सॉरी वहाँ के लोगों पहनते थे, उनकी बनावट में। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेजल्स। द हरप्पन मेड सील्स आउट ऑफ stone which were rectangular in shapes and have an animal carved them. सो हड़प्पा में सील्स जो स्टोन मिलते थे वहाँ पे रेक्टेंगल तरह के वो स्टोन्स होते थे जिनमें मानवी के सॉरी उसकी बनावट देखी जाती थी, ये एनिमल की। सो कॉटन वॉज प्रॉबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ में कॉटन को पाया जाता था फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स अगो। तो 7,000 साल पहले कॉटन को मेहरगढ़ में पाया जाता था। मेहरगढ़ मेहरगढ़ Archaeologists have also found spindle whores in search of the raw material. So raw material are the substance that are either found naturally or produced by farmers or herders. So ये किसानों द्वारा पैदा किया जाता था या फिर हमें नेचुरली मिल भी जाता था। So raw material are processed to produce finished goods. The raw material that the Harappa used were available locally, whereas many items such as copper, tin, gold, silver, and precious stones were brought from distant places. The Harappan probably got copper from present day राजस्थान एंड फ्रॉम ओमन इन वेस्ट एशिया। तो आज भी हड़प्पा के जो लोग थे उन्हें राजस्थान से ये कॉपर मिलता था। टीन वॉज मिक्सड विथ कॉपर। जो टीन होती थी उसे कॉपर के साथ मिक्स किया जाता था। और फिर हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान एंड ईरान। और आज के अफ़गानिस्तान और जो ईरान है वहाँ से वो लाया जाता था। गोल्ड हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड प्रीसियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफ़गानिस्तान। तो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से ही वो स्टोन लाया जाता था। और इसकी ख़ास बात ये थी कि कर्नाटक से भी गोल्ड मिलता था हमें। फूड कैसा होता था? सो जो लोग वहाँ पे थे कंट्री के पास के, वो खेती पे और ये प्राणियों पे आधार रखते थे। वहाँ पे हमें गेहूँ, बार्ले, पल्सेस, पीट्स, राइसेस, सीसम, लिनसिट एंड मस्टर्ड, ये सभी प्रकार के फूड हमें फूड नहीं, बीज तत्व पाए जाते थे वहाँ पे। सो वहाँ की खेती कैसी थी? द प्लाउ वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सोइल एंड प्लांटिंग सीड्स। सो हमें ये भी पता चलता था कि वहाँ के लोगों को प्लांटिंग सीड्स के द्वारा प्लाविंग करते थे। जो सीड्स होते थे जो सॉइल के अंदर प्लांट करते थे, फिर उसके बाद उसे खेती के रूप में खेती को बढ़ावा दिया जाता था। वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाई टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोविंग। सो वाटर स्टोर किया जाता था, सप्लाइड किया जाता था टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग, और प्लांट्स को उगाया जाता था। हरप्पन रियर्ड कैटल सी goat and buffalo. In the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. People also collected fruits like bear, caught fish, and hunted wild animals like the antelope. क्लोज़र लुक हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात। गुजरात के जो हड़प्पा टाउन्स हैं उनमें हम देखेंगे कि क्या खास बातें हैं। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन द खादियर बेट इन द कच्छ रन। सो खदीर बेट के अंदर हमें धोलावारा नाम की सिटी मिलती है। जो हड़प्पीय संस्कृति का एकमात्र गुजरात का कच्छ में आया हुआ सबसे बड़ा विस्तार है।
This city has a fresh water and fertile soil. Dholavira was divided into three parts, and each part was surrounded with the massive stone walls and entrances through gateways. So सिटी में फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सोल भी थी यही सिटी में. धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. तीन भागों में धोलावीरा को डिवाइड किया गया था, जिसमें कि हमें सराउंड में मैसिव स्टोन मिलते हैं और वॉल्स मिलती हैं एंट्रेंस के टाइम पे. देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट. ओपन एरिया बहुत लार्ज था वहाँ का. वेयर पब्लिक सेरेमनीज वर हेल्ड, जहाँ पे पब्लिक सेरेमनी मिलती हैं. लार्ज लेटर ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड इनलेड इन वुड. So large letter of the Harappan script were carved out of white stone and inlaid wood. तो जो भी आपके पास वुड रहता था, लकड़ा, उसमें से स्क्रिप्ट बनती थी और उस पे स्क्रिप्ट को कार्व किया जाता था, मतलब स्क्रिप्ट को उस पे लिखा जाता था. द सिटी ऑफ द लोथल स्टूड बिसाइड अ tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat. So the city of Lothal stood beside the tribute of Sabarmati in Gujarat, closer Gulf of Khambat. खम्बात के पास लोथल मिलता है. The raw materials such as semi-precious stones were easily available in the city. There was also a storehouse in the city, workshop for making beads, pieces, stone, half-made beads, tools, bed making and finished heads have all been found here. So ये सभी प्रकार की चीज़ें हमें लाती हैं जो गुजरात में ही आया हुआ है. सो मिस्ट्री क्या थी अंत की. अराउंड 3,900 years ago, we find the beginning of the major change. People stopped living in the many of the cities. Writing skills and weights were no longer used. So यहाँ पे हमें ये दिखाई देता है कि 3,900 साल बाद लोगों में चेंजेस आने लगे और राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड. तो अभी वहाँ पे जो लिखावटें थीं और जो सील्स थे, जब पत्थर की लिखावटें थीं, वो सब यूज़ में नहीं आते थे. रॉ मटेरियल ब्रिंग फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकम रेयर. अब जो लोग दूसरी जगह से रॉ मटेरियल लाते थे, अब वो भी लाना बंद कर दिया गया. बहुत कम लोग ही वो लाते थे क्योंकि अब वो रेयर हो गया था. इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप on the street. The drainage system broke down and new, less impressive houses were built even over the streets. Why did all this happens? So ड्रेनेज सिस्टम भी ख़त्म कर दिया गया एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेस थे, वो उनको बनाने की शुरुआत होने लगी. इवन ओवर द स्ट्रीट के पास में भी. वाई डिड ऑल दिस हैपन्स? ये सब क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर. वी आर नॉट श्योर. सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप. Others suggest that there was a deforestation. In some areas there was flood, but none of these reasons can explain the end of all the cities. कुछ लोग का ये मानना है कि सब कुछ सूख गया था, मतलब रिवर्स, पॉन्ड एंड ऑल. कुछ लोग का ये मानना है कि जो फॉरेस्ट था वो चला गया, उसको डिस्ट्रक्शन हो गया. But none of these reasons can explain the end of all the cities. It appears as if the rulers lost control. Sites in Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the south.
So guys, here the historian studies the Rig Vedas. You guys read it by your own self. Cattle, horse and chariots, word to describe people. Silent sentinels, the story of the megaliths. These are the outer sources guys, which archaeologists also found, but it is not available only in your syllabus. The only thing is that it may contain in your compulsory examination in Diwali examination, so we may continue with that after some time. And guys, if you read it 2 to 3 times, you can understand Harappa Sanskriti and Harappa culture very well. So guys, till to then, stay tuned with Astral Global School. Thank you.